اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے تھے مائکروبیوم کی اور اسی کو ہم جاری رکھتے ہوئے اپنے ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. اور ہم نے بات پلیز اسٹارٹ. جی سر. یہ سلائڈس ہم دیکھ چکے ساری سلائڈ سر آ رہی ہے نا. سلائڈ سر آ رہی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے آرگینوجینسس کی. آرگینوجینسس میں جو ہے وہ پری باٹک کی ہم بات کرتے ہیں، جس میں جو ہے پری باٹک کیا ہوتے ہیں ہم جان چکے ہیں. یہ پروبیوٹک سے آگے جو ہے وہ پری باٹک ہوتے ہیں. یہ فائبر بناتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان کی آرگینوجینسس جو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ گٹ وال بنتی ہے اور بون ڈیولپمنٹ جو ہے یہ نیچرلی طور پر ہوتی ہے، جس کے اندر یہ سارے مائکروبیوم جو ہے وہ ہوتے ہیں. بیسیکلی طور پر کیلشیم کی ابزارپشن اس میں جو ہے زیادہ ہوتی ہے. یہ ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی جو ہے چیز آتی ہے جس میں پی ایچ کی تبدیلی اور اس کے بعد دیگر ویٹ کے اندر جو ہے یہ اور باڈی فیٹ بیکٹیریا جو ہے اس یہ جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف دا مائکروبیوم. تو مائکروبیوم جو ہے یہ کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں، تو آگے جو ہے یہ کیسے بڑھتے ہیں اور اس میں جو ہے کیسے تبدیلی آتی ہے. تو بیسیکلی طور پر یہ ہمارے جسم کے اندر کیسے آتے ہیں. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے نیچرلی طور پر جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں اور یہ فٹس گٹ سے جو ہے جب بچہ جو ہے یہ فٹس سے پیدا ہوتا ہے اس کا پر بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آخری عمر تک جو ہے اولڈ ایج تک یہ جاتا ہے. تو یہ ہمارے جسم کے ساتھ جو ہے مائکروبیوم جائیے ان میں اضافہ بھی ہوتا جاتا ہے اور اس میں تبدیلیاں بھی آتی جاتی ہیں. تو یہ فیس بورڈ وجینلی اس میں جو ہے جب وجینلی یہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے مائکروبیوم جو ہوتے ہیں. تو یہ جتنے بھی جو باہر والا جب انوائرمنٹ کے اندر آتا ہے بیسیکلی طور پر باہر والے مائکروبیوم جو ہے کی ضرورت ہوتی ہے تو جس کو جو ہے یہ کٹ پورا کرتی ہے بیسیکلی طور پر. تو یہ ڈائورسٹی آف دا مائکروبیوم اس کے اندر جو ہو جاتی ہے. تو جس کی وجہ سے تمام جسم کے اندر یہ خاص طور پہ یہ جو ہے یہ پھیل جاتا ہے اور ہمارے جو ہے نرسری سے لے کے جو ہے یہ مدر جب بھی جو ہوتے اس کے اندر تک جو ہے یہ مائکروبیوم جو ہے یہ ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں. اس میں جو ہے مطلب جب برسٹ فیڈنگ ہوتی ہے پیٹ کی تو اس کے ساتھ جو ہے یہ بہت زیادہ جب انفلمیشن اور انفیکشن کی جو چیز ہے وہ انٹسٹائنل بیکٹیریل سیل جو ہے اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ یہ ڈائیورس ہو جاتے ہیں اور ہمارے جسم کے اندر ہر جگہ پہ چاہیے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ ریسپریٹری ٹریک کے اندر چلے جاتے ہیں، جلد کے اندر چلے جاتے ہیں اور خون میں شامل ہو کر یہ کڈنی کو ڈیمیج کرتے ہیں اور جو ہے باقی ذات کو جو ہے ڈیمیج کرتے ہیں. یہ ایک بہترین قسم کا نیچرل نظام ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہمارا جو سلائیوا پیدا ہو رہا ہے
कि माइलेज पैदा हो रहा है, पेप्सिन पैदा होता है, टिसिन पैदा हो रहा है, और जितने भी जो है एंजाइम पैदा हो रहे हैं निचली तौर पे जो है माइक्रोग्राम की प्रोडक्ट है। इसी तरीके से बाद लोग कहते हैं ये जो है ये अपना बी सी और ये जो है ये बहुत नुकसान भी होते हैं। बेसिकली तौर पर जिगर का अगर आप माइक्रोग्राम इसके अंदर जो काम करते हैं वो जिगर के जो आहार को बेहतर करते हैं, क्योंकि जिगर के जितने भी फंक्शन है बेसिकली तौर पर माइक्रोग्राम के अंदर होते हैं, जो कि हेपेटाइटिस ए बी सी का वो इसकी मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि जैसे कि बंगला जो है एक भावलपुर का जो है वो एक कॉमी मिलता है, तो उसमें जो है भावलपुर का वाटर खोलने तो उसमें जो है भावलपुर जो है वो बंगला नजर आएगा, तो वो अपने बच्चों को खा जाता है। जब उसको भूख लगी हो और स्टार्वेशन हो तो अपने बच्चों को खा जाता है। इसी तरीके से जब हमारा जिगर जो है डैमेज हो रहा हो उसको नुकसान पहुंचने की तरफ जो मौजूद होते जो है वो अपना जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कवर करने अपना बी सी डी और इतना ज्यादा डाल दिया जाता है हमारे लोगों को कि हमें जो है ये बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं ये फैक्टर होते हैं उसमें जब हम इसको कंट्रोल कर ले, यानी कि हम अपनी खुराक को कंट्रोल ले और हेपेटाइटिस बी सी और डी और ई जो है जितने जो है ये वाला हेपेटाइटिस जो है ये जो है काला यरकान हो गया, पकड़ो पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता इससे। इससे चीजें जो आती है उसको हम कवर कर लें तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। तो ये द फैक्टर दैट शेप माइक्रोबियल, कैसे फैक्टर जो कि माइक्रोबियल की शक्ल जगत इख्तियार करते हैं और यू बोल कि आप कैसे पैदा हुए थे और उसके बाद फीडिंग पैटर्न आपका क्या है। तो मैंने बहुत सी ऐसी मदद देखी है जो एक कतरा भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, हालांकि इसके अंदर निचली तौर पर बहुत ज्यादा माइक्रोबियल हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं। तो आपका फीडिंग पैटर्न क्या है कि आपको डब्बे का दूध पिलाया जा रहा है, आर्टिफिशियल दूध पिलाया जा रहा है, तो मैन बट ईट तो कैसे जो है खाता है। तो इसके बाद तो योर जेंडर आप जो फीमेल है या मेल है, हमारे यहाँ पे जो ये बहुत ज्यादा ख्याल कहता है लड़कियों को जो है कम गुजार दी जाती है, हालांकि वो घर के सारे काम करती हैं, उनके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी होती है, और मर्द को जो है लड़के को ज्यादा जो है वो गुजार दी जाती है, तो मतलब मेल को ज्यादा गुजार दी जाती है, असल में फीमेल को कम गुजार दी जाती है। तो माइक्रोबियल दोनों के अंदर जो है ये सेम काम करते हैं। तो इसके बाद जो है ये बेसिकली तौर पर फिजिकल एक्टिविटी जो है जिनकी ज्यादा होती है उसमें माइक्रोबियल कैसे काम करते हैं, और इसी तरीके से एज जो है वो एज फैक्टर भी इसमें काउंट करता है कि बचपन में जो है वो बीमारियां जो आप देखें बच्चे ज्यादा हमारे बीमार हो रहे हैं फौरी तौर पे जो है उनको जो है कोई दस्त लग जाते हैं, फीडिंग का मसला आ जाता है, उल्टी आनी शुरू होती है, बुखार हो जाता है, गला खराब हो जाता है। तो ये असल में जो है ये फैक्टर बचपन में ज्यादा होता है, जबकि जो है ओल्ड एज में भी ज्यादा हो जाता है। जब जवानी होती है तो उस वक्त हम मजबूर होते हैं, तो हमारे जैसे जो बूढ़े हैं वो जो है फौरी तौर पर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने के उनके अंदर चांसेस होते हैं। इसी तरह से फिजिकल एक्टिविटी जिनकी जो है वो ज्यादा होती है, तो ये सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, तो उनमें जो है वो माइक्रोबियम जो है वो ज्यादा होते हैं, और जिनके अंदर जो है ये फिजिकल एक्टिविटी कम होती है उनमें जो है माइक्रोबियम बहुत कम होते हैं। इसी तरीके से आप कहाँ रहते हैं, जो है अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, तो आपके अंदर माइक्रोबियम जो है ये जो है वो गर्म इलाके के अंदर उसी हिसाब से जो ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पे आपको गर्मी को ज्यादा फेस करना पड़ता है। और इसी तरीके से आप अगर रशिया में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर किस्म का मौसम अल्लाह ने दिया हुआ है, गर्मी सर्दी बहार बरसात जाइए हर वक्त जारी रहता है। तो हमें बहार भी मिलती है और बरसात भी मिलती है और सर्दी भी मिलती है और गर्मी मिलती है। ये नेचुरली तौर पर हम जो है ये बड़ा जबरदस्त किस्म का निज़ाम जो है अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान को जो है वो दिया हुआ है, तो बहुत जबरदस्त निज़ाम है। तो इसके बाद जो है कुछ हॉर्स जेनेटिक्स के अंदर भी जो हम इसके बारे में जानते हैं कि हॉर्स के अंदर जो है जो हमारा पेट है बेसिकली तौर पर उसमें जो है वो मोनोजाइगोटिक होते हैं, कुछ डाइजाइगोटिक होते हैं, और जो है वो कुछ जो है हेर्बेलिटी के अंदर जो है मौजूद होते हैं। इनका टैक्सा भी होता है, जो टैक्सोनॉमी जिसको कहते हैं। तो ये इसका फंक्शनल पाथवे जो है बताया गया है कि कैसे ये अपने काम को सर अंजाम देते हैं, और इसी तरीके से ये जो है वो लिविंग पार्ट के अंदर जो है वो कैसे करते हैं।
تو फंक्शनल जो है पाथवेज का जो है क्या होता है, तो इसको हम जो है वो मजीद जो है जानते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली तौर पर। तो हॉर्स जेनेटिक यानी कि जो विरासती तौर पे हमें जो है जिसके अंदर बच्चा जो है माँ के पेट में होता है, सब लोग जानते हैं। तो जिसके अंदर माइक्रोबियाम होते हैं तो उसमें जो है वो कैसी एबिलिटी जो है होती है कि उसमें जो अगर मुझे फर्ज किया कि बहुत से जो है वो कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं और शराब भी आ जाते हैं, उसको गुड़ भी काट लेती है और उस तरह से और भी जख्म आ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। तो माइक्रोबियाम इस तरीके से कैसे काम सार अंजाम देते हैं। तो गट माइक्रोबियाम की हम बात करते हैं तो ये मुख्तलिफ डिजीजेस के अंदर जो है वो कैसे जो है वो अपने काम को सार अंजाम देते हैं। तो गट माइक्रोबियाम बेसिकली तौर पर जो भी हमारे जो है वो पेट के अंदर जो माइक्रोबियाम होते हैं, यानी कि ये इसोफेगस से लेके जो है ये हमारे तक जो माइक्रोबियाम होते हैं वो कौन कौन सी जो है बीमारियां पैदा करते हैं। डायबिटीज टाइप 2 ये रेजिस्टेंस बीमारी है, आप सब लोगों को पता है। तो ये जो है नेचुरली तौर पर बाद लोगों के अंदर जो है पैदा हो जाती है। इसी तरीके से डायबिटीज टाइप 1 जो है ये बाद तक पैदा हो जाती है। और इसी तरीके से ओबेसिटी, आपको पता है मोटापा, अभी हम इसकी बार बार बात कर रहे हैं। तो ये भी जो है अभी हमने जो कशिंग डिजीज पढ़ी थी उसमें भी जो है ओबेसिटी जो है ये एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही थी। इसी तरीके से स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस भी एक अहम किरदार अदा करती है। एलर्जी जितनी भी जो है पोलर एलर्जी है और इस तरह के जितने भी जो है वो एलर्जीज है, ये भी जो है माइक्रोबियाम के अंदर जो है ये पैदा करने के अंदर जो है ये अहम किरदार अदा करती है। इसी तरीके से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है हमारा जो दिल का निज़ाम और उसके बाद जो है खून का निज़ाम, ये भी जो है ये माइक्रोबियाम के अंदर जो है अभी मैंने कहा कि पेट से जो है अब्जॉर्ब होकर ये पूरे खून के अंदर, पूरे जो है जिस्म के अंदर नालियों के जरिए जो है हर सेल के अंदर पहुंच जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर पहुंच जाते हैं, किडनी के अंदर पहुंच जाते हैं और दीगर जगहों पे पहुंच कर जाइए बहुत अहम किरदार करते हैं, अदा करते हैं। तो इसी तरीके से जो है HIV जो है ह्यूमन अमीनो वायरस जो है ये भी बहुत ज़्यादा जो है ये अहम है। इसके अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा माइक्रोबियाम जो है काम करते हैं और इस तरीके से ये पैदा करने में भी जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं और इसको जो है दूर करने में भी जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। दोनों तरफ से ये डिफेंस मैकेनिज्म भी है और पैदाइश का मैकेनिज्म भी है। तो ये अगर जो है ये मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि हर कन्वेंशनल बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक जगह पे रहते हैं, फर्ज किया कि स्ट्रेप्टोकोकस है, वो हमारे गले के अंदर होते हैं बेसिकली तौर पर। स्ट्रेप्टोकोकस अगर किडनी के अंदर चले जाएंगे तो वो हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा देंगे, किडनी के अंदर इन्फेक्शन कर देंगे। तो हर जितने भी माइक्रोबियोम जहाँ भी मौजूद होते हैं, जितने वायरसेस मौजूद होते हैं, तो वायरस बेसिकली क्या है, अभी कोविड-19 गुजरा है और इस तरह के बेसिक है क्या, कैस्केड होती है एक मतलब प्रोटीन की, उसके अंदर डीएनए होता है, सीधी बात है जी। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर है डीएनए का, सॉरी वायरस का। तो वायरस होता है कि ये बिल्कुल टैली जो है वो होता है जिसके अंदर डीएनए मौजूद है, वो जो है वो बायो है, यानी कि उसमें जो हयात होती है। तो इस तरह से जो है जितने भी जो है वो वायरसेस है, बैक्टीरिया ये जो है हयातियाती माइक्रो होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो है जरासीम होते हैं। तो ये हमारे जिस्म के अंदर बेहतरीन काम भी करते हैं, लेकिन जब उनकी एक्टिविटी जो है वो खराब हो जाती है तो एक गट के अंदर ये अगर गले में अगर हमारे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस और दीगर जो है ये नेचुरल फ्लोरा के अंदर जब मौजूद रहे तो हमें जो नुकसान नहीं पहुंचाते। तो जब आप खट्टी चीजें खाते हैं, बच्चे खास तौर पे मेरे पास जितने भी आते हैं, तो उन्होंने पापड़ और ये जो टाटरी शाटरी खाई होती है तो उसकी वजह से और जो गले के अंदर उनकी इन्फेक्शन होती है। तो बेसिकली तौर पर जब ये आते हैं तो उसमें जो है ये और देखिए ना, आप जिस किसी चीज को छेड़ेंगे, नेचुरल जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस रखा हुआ तो आप उसको छेड़ देते हैं, उसकी ये हमारे गार्ड जो है हमारे टॉन्सिल जो अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो ये जब मुतासर होते हैं तो उसके खिलाफ जो कुव्वत मुदाफत के अंदर उनको खुद फूल जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस जब एक्टिव हो जाते हैं। तो इसी तरह से कैंसर सेल इनके अंदर भी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं माइक्रोबियोम। ऑटिज्म एक डिजीज है, ये ऑटिज्म जो है ये बेसिकली तौर पर ब्रेन की बीमारी है और इसमें भी जो है ये क्रॉन डिजीज और आईबीडी जो है इसको हम और मजीद डिस्कस कर लेते हैं ये थोड़ा सा। तो माइक्रोबियाम और ओबेसिटी जो है इसको सब लोग जानते हैं कि मोटापे के अंदर जो है माइक्रोबियाम बहुत अहम किरदार अदा करते हैं जी। तो माइक्रोबियाम जो है बेसिकली तौर पर जो है ये क्या करते हैं जी, इसमें जो है डिस्मोसिस जो है माइक्रोबियल की हो जाती है, जिसकी वजह से
हमारे अंदर जो है क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म की इन्फ्लेमेशन और इशू हो जाती है और ओबेसिटी पैदा हो जाती है। बेसिकली तौर पर हमारा मैदा भी खराब हो जाता है, जिगर भी अपना काम करना छोड़ देता है और हमारा जो है खाने का निज़ाम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। कल भी मैंने बात की थी कि एक बंदा जो है वो रोज़ा पता रखा था या नहीं रखा था, तो वो जो है 30 नान खाने के चक्कर में था। तो जब हम 20-30 रोटियां और नान खाने के चक्कर में रहते हैं तो वो जो है हमारा गट सिस्टम जो है वो कहाँ जाएगा। इसी तरह से हम बेकरी के आइटम खाते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें खाते हैं और खाए जाते हैं, खाए जा भी खाए जा है जी। तो जब ये हम इस तरह के काम करते हैं तो उसके अंदर जो है हमारे के अंदर जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने की जो है चांसेस जो है वो हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो बाद का जो है बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाती है सेल के अंदर जो है ये। और जब जो है ये खत्म हो जाती है तो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है और ग्लूकोज जो है वो हमारे जिस्म के अंदर स्टोर नहीं होता, शाम को रस्ते खाने जो शुरू हो जाता है और इसी तरीके से जो है ग्लूकोज की मकदार जो है बाद का हमारे जिस्म के अंदर जो है बढ़ जाती है। इसी तरह से जो है वो फैटी एसिड की मकदार बढ़ जाती है, प्रोटीन की मकदार बढ़ जाती है। तो हम जो है बेसिकली ऑब्सिडी का शिकार जो है वो होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि माइक्रोबियाम जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जो है वो माइक्रोबियम डिजीजेस के अंदर जो है डायबिटीज मेलिटस जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है बेसिकली तौर पर। इसके अंदर हम जो है वो बार बार ये जिक्र कर चुके हैं कि बेसिकली तौर पर इसमें जो है बुटारिक एसिड पैदा होता है, लैक्टेट पैदा होता है, ये सारे जो जितनी भी चर्बी है ये सारी पैदा होनी शुरू हो जाती है बेसिकली तौर पर, जो हमारे पेट के अंदर जो है जाके वहां पर उनको फ्री स्पेस जो है मिल जाती है। पेट की 4 तहें होती है, एंडोडर्मस, मेसोडर्मस और जो है एपिडर्मस और जो है लोअर डर्मस। तो ये इस तरीके से जो है इस डर्मस के अंदर जो है ये अपनी जो है वहां पे जाके इनके अंदर जो है फैटी लिवर बना लेते हैं और फैटी लिवर होने के बाद ये जाके वहां पे जो है अपना स्टोर करना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से जो है फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है हमारी गट के अंदर। तो जब हमारे ये खास तौर पर जो है एब्डोमेन के अंदर, तो जब हमारे एब्डोमेन के अंदर जो है और इसी तरह फैटी लिवर के अंदर जब ये हो जाता है स्टोर बहुत ज्यादा मकदार में, तो हमारा पेट भी बढ़ जाता है, हमारा जिस्म भी बढ़ जाता है, थाई के अंदर ये जमा होना शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ जगहों पे जो है डिपॉजिट होकर जो ये हमारे अंदर जो ऑब्सिटी और डायबिटीज का बायस जो है बनता है। तो डायबिटीज मेलिटस जो है ये बेसिकली तौर पर हमारे जिस्म के अंदर जो है ये हमारे पंक्रियास को जो है नुकसान पहुंचाती है। हम क्या करते हैं जी, लैक्टोज, फ्रक्टोज और माल्टोज जो है पॉलीसेकेराइड को बहुत इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली तौर पर सफेद चीनी जो है बहुत इस्तेमाल करते हैं। सफेद चीनी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और उसके बाद जितने भी मशरूबात हम पीते हैं, कोको कोला, पेप्सी कोला और कोला कोला जो हम करते रहते हैं रोज़, और आजकल तो वो स्प्राइट और इस तरह से 7 अप टाइप जो है ये भी कोले हैं। तो ये भी जो है इंतहाई नुकसानदार हमारे बॉडी को जो है ये डायबिटीज़ की तरफ जो ले जाते हैं। हमारा एक डिस्पेंसर था, उसका नाम एहसान था, तो उसने जो है रोज़ सुबह आके जो है एक बोतल जो है वो ये टी या वो क्या कहते हैं उसको, इस तरह की बोतल जो है वो पीता था, मतलब जो भी होते रोज। तो उसने जो है 1 महीना लगातार बोतल पी, तो उसके बाद 1 महीना के बाद उसको ये डायबिटीज मेलिटस जो है वो हो गई। तो इस तरीके से जब हम बात परहेजी करते हैं और जो है ये हमारे जिस्म को जो है इंटेस्टाइन को जो है नुकसान पहुंचता है बेसिकली तौर पर, ये बैरियर तबाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे बैरियर जब तबाह हो गए तो उसके बाद जो भी हम खाएंगे इसी तरह से जो है दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे अंदर जो है वो जो जिगर को फेल को जो है वो तबाह हम कर लेते हैं मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें खा के, लैक्टोज खा के और इस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करके हम अपने जिगर को भी तबाह